Good morning, class. Today I'm going to start the chapter Financial Statement with Adjustment. I hope the previous chapter is completely clear to you and you know now which terms are recorded in trading and profit and loss and the balance sheet. So as you can see in your book, there are total 22 adjustments. It is compulsory for all of you to learn the adjustments. बिकॉज जब तक आप एडजस्टमेंट्स लर्न नहीं करेंगे तो आपको नहीं समझ आएगा कि उसकी पोस्टिंग कहाँ और कैसे करनी है. सो एज आई एम डूइंग द क्वेश्चन, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो टू यू डू द क्वेश्चन एंड लर्न द एडजस्टमेंट्स. एंड वन मोर थिंग, अब अगर आपको ये चीज़ क्लियर नहीं है कि कौन सा एक्सपेंस ट्रेडिंग का और कौन सा पीएनएल का है, तो आपको ये सब चैप्टर एक्सप्लेन नहीं होगा प्रॉपरली. सो बिफोर दैट इट इज़ कंपल्सरी टू read out or complete the previous chapter. So I'm going to start with the first adjustment. The first adjustment is about the closing stock. You know the closing stock, the value at the end of the year, means the goods which are unsold. They are known as the closing stock. So we have one first adjustment related to closing stock. The first rule for the adjustment, each and every adjustment is posted twice in your account. Means एक एडजस्टमेंट की पोस्टिंग ऑलवेज टू साइड्स होगी. सो द क्लोजिंग स्टॉक इज वंस टू बी रिकॉर्डेड in the trading account credit side. Second, this is my stock, so it will be recorded in the balance sheet in the asset side. So two posting for this adjustment is in the credit side of trading account, second in the assets. And one more formula is applied for the closing stock, cost price or market price, whichever is less. दोनों में से जो भी लेस वैल्यू होगी उसकी वैल्यू को हम मार्केट प्राइस या कॉस्ट प्राइस जो भी लेस होगी उसको हम अपनी पोस्टिंग्स में अमाउंट की सेंस में शो करेंगे. फॉर एग्जांपल, द मार्केट प्राइस इज 25,000 एंड द कॉस्ट प्राइस इज 20. सो ऑब्वियसली लेस इज 20,000. सो वी विल रिकॉर्ड द 20,000 अमाउंट इन द टू साइड्स. द सेकेंड एडजस्टमेंट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. You know the meaning of outstanding expense very much. Outstanding expenses are such kind of expenses, they are still due, not paid by the businessman. So you know expenses are to be recorded where? In the debit side of trading account में आते हैं या फिर profit and loss account में. डेबिट साइड में एक्सपेंसेस आते हैं, तो जितना भी एज पर एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होगा उस पर्टिकुलर एक्सपेंस में डेबिट साइड में वो ऐड हो जाएगा. कि जैसे कि सपोज सैलरी दी है 10,000, प्रॉफिट एंड लॉस में हमने रिकॉर्ड की, एज पर एडजस्टमेंट मेंशन है 2,000 आउटस्टैंडिंग सैलरी. तो आउटस्टैंडिंग सैलरी हम पीएनएल के डेबिट में सैलरी में 2,000 ऐड कर देंगे. सेकेंडली, आउटस्टैंडिंग सैलरी, दिस एक्सपेंस इज टू बी पेड बाय द बिजनेसमैन. पे करना है अभी, सो इट इज़ माई लाइबिलिटी, सो इट विल बी रिकॉर्डेड इन द लाइबिलिटी साइड. थर्ड वन इज थर्ड एडजस्टमेंट इज prepaid expense or unexpired expense. You can say unexpired or prepaid expense, expenses paid in advance. So again the expenses are recorded in the trading or profit and loss debit side. So these are expenses related to the next year, so it will be minus. Second, in the balance sheet they are to be recorded in the asset side. The fourth adjustment is depreciation. You know depreciation is always charged on the assets. So ये हमारा लॉस होता है एसेट्स, क्योंकि इससे एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है. सो इट विल बी रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सेकेंडली, इट इज़ चार्ज ऑन डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन एसेट्स. तो बैलेंस शीट में से एसेट्स की वैल्यू लेस हो जाएगी by charging depreciation. So these are first four adjustments. So with the help of these four adjustments, let's start the first illustration. This is the profit trial balance as on 31st March 2019. The debit and credit terms are to be mentioned here. Some adjustments are. The first adjustment is stock on 31st March was rupee 24,000. Reliable value is 30. So in दोनों में से कम है 24. So we will record the value as 24. Outstanding wage for the month of March is 3,000. Outstanding salary is 2,500. Prepaid insurance is 300. Depreciation on plant and machinery 5% and on furniture 20%. So सबसे पहले मैं adjustments की posting करती हूँ because adjustments post करना सबसे ज़्यादा important है. So I'm going to start with the first adjustment is closing stock. So as per the adjustment, the closing stock is to be recorded in the credit side of trading account. Second posting of this adjustment in the asset side of balance sheet. So it will be recorded here in the balance sheet. You know, this is assets and these are liabilities. Rupees
rupees. Here in the credit side, we are recording the incomes, and in the debit side, we are recording the expense. So the first adjustment is complete. The second adjustment is outstanding wages rupee 3,000. You know the wages, they are the expense related to trading account. So find out the amount of wages from this trial balance. They are the wages rupee 42,000. So in the debit side of trading account, I am writing wages 42. Now the adjustment is outstanding wage are rupee 3,000. So outstanding wages, you have to add 3,000. Now the total amount of wage is 45,000. In the same manner, you have to do in your notebook. जैसे मैं lines की इधर adjustment करके total amount इस side लिख रही हूँ, same you have to do in your notebooks also. Now one adjustment is posted twice. So 3,000 की adjustment एक तो हमने यहाँ post कर दी. Second इसको अभी pay करना है. So it is my liability. In the liabilities, I am writing outstanding wages rupee 3,000. You have to write down the amount of adjustment. The next adjustment is outstanding salaries rupee 2,500. Now find out the amount of salaries as per the trial balance. The salaries are, as you can see, 27,500. Salaries are the expense of profit and loss account. There is a difference between the trading and profit and loss account. The amount of salary is 27,500. Add the amount of adjustment, outstanding salary 2,500. So it is total 30,000. Outstanding salary, again it is a part of my liability as rupee 2,500. This adjustment is also complete. The next adjustment is prepaid insurance rupee 300. This is related to insurance. So find out the amount of insurance. We have insurance of rupee 1,500. So insurance is again the part of profit and loss, 1,500. Prepaid is minus. So minus prepaid insurance, 300. So amount of insurance for the current year is 1,200. This prepaid insurance is the part of my asset. Insurance 300. As per the last adjustment, you have to charge depreciation on plant and machinery at 5%, furniture पर 20%. तो पहले हम लगाएंगे plant and machinery पर 5%, furniture पर 20%. This is plant and machinery and this is furniture. आपको पता है प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर मेरी एसेट होती हैं. सो हम एसेट्स में लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी थी मेरे पास 90,000 की. अब इसके ऊपर डेप्रिसिएशन 5% से चार्ज होगी. सो एज यू नो द डेप्रिसिएशन इज माइनस फ्रॉम द एसेट्स. 90,000 के ऊपर 5% डेप्रिसिएशन लगेगी तो 45,500. द रेस्ट अमाउंट इज 85,500. द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज अ लॉस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. सो डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी वी चार्ज 40,500. Second, on the furniture also you have to charge. The value of furniture is 8,000. फर्नीचर के ऊपर आपको लगानी है 20%. इसमें से हो जाएगी माइनस 1,600. 20% of 8,000. Rest is 6,400. And again this is to be recorded as depreciation. It is 1,600. So the amount of total depreciation is 6,100. Now all the adjustments are over here as you can see. The rest things are कि जो भी आपके अब ट्रायल बैलेंस के अकॉर्डिंग टर्म्स हैं हम उसको नेसेसरी अकाउंट्स में पोस्ट करते रहेंगे. द फर्स्ट इज ओपनिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक इज इन द ट्रेडिंग अकाउंट. देन वी हैव परचेजेस. टू परचेज 80,000. सेल्स रिटर्न 6,000. कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट. कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. द नेक्स्ट इज वेजेस जो हम कर चुके हैं उसको स्किप कर देंगे. सैलरीज हो चुकी हैं. प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर हो चुका है. नेक्स्ट वी हैव डेटर्स. दे आर माई एसेट्स 52,000. बी आर एसेट 2,500. नेक्स्ट वी हैव कैश. एज यू कैन सी इन योर बुक्स. अपनी बुक्स सामने खोल कर बैठिएगा जब आप लोग वीडियो को वॉच कर रहे हैं. नेक्स्ट वी हैव ट्रैवलिंग एक्सपेंस. ट्रैवलिंग एक्सपेंस इज द एक्सपेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. क्योंकि ये ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आता तो ऑब्वियसली आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा 3,700. द नेक्स्ट इज फैक्ट्री लाइटिंग. फैक्ट्री इज ट्रेडिंग अकाउंट एक्सपेंस. फैक्ट्री लाइट 1,400. रेंट एंड टैक्सेस प्रॉफिट एंड लॉस 7,200. जर्नल एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस
10,500. इंश्योरेंस हम ऑलरेडी लिख चुके हैं. ड्राइंग्स, यू नो ड्राइंग्स आर एज पर द बैलेंस शीट रिड्यूस फ्रॉम द कैपिटल. सो जितना भी कैपिटल होगा उसमें से हम माइनस कर देंगे ड्राइंग्स को. नाउ इन द क्रेडिट साइड वी हैव सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट 2,70,000. परचेज रिटर्न इन द क्रेडिट साइड, और परचेज में से माइनस भी कर सकते हैं आप. डिस्काउंट इज टू बी रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट, इट मीन्स दिस इज डिस्काउंट रिसीव्ड. सो क्रेडिट में है तो हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट में लिखेंगे. क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल एंड कैपिटल, ऑल द थ्री थिंग्स आर टू बी रिकॉर्डेड इन द लाइबिलिटीज. क्रेडिटर्स 25,000, बीपी आपका 1,800 एंड द कैपिटल इज ऑफ ₹75,000. दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन. एडजस्टमेंट्स आपकी 2 साइड्स पोस्ट होती है, रेस्ट आपके सिंगल साइड पोस्टिंग होती है. ट्रेडिंग अकाउंट से हम निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन बाय बैलेंसिंग, it is 142. This GP is to be brought down in the profit and loss account, 142. Then again do the balancing of this profit and loss account and find out the NP. It is NP carry down 87,700. This NP is to be added in your capital, 87,700. अब बैलेंस शीट में डेफिनेटली कोई भी बैलेंसिंग फिगर नहीं आएगी. बैलेंस शीट का टोटल आपका इक्वल आएगा. अगर if it is not equal, it means a mistake will be there definitely. So this is about our first illustration. Okay, so next start with the next adjustment. The next adjustment is adjustment number 5. It is accrued income, or you can say outstanding income also. एक ऐसी इनकम जो मुझे मिलनी है, अभी तक मिली नहीं है. So incomes are to be recorded in the credit side of profit and loss account. So मिलनी है तो obviously ये इनकम में ऐड हो जाएगी. जिस साइड भी आपकी क्रेडिट साइड में जो भी इनकम होगी उसमें ऐड हो जाएगी. सेकेंडली दिस इज टू बी रिसीव्ड, करना है हमें रिसीव, तो बैलेंस शीट की एसेट्स में. द नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज अनअर्न्ड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस. दिस इज दैट काइंड ऑफ इनकम जो अभी तक आपने, इस तरह की इनकम है जिसके लिए आपने सर्विसेज अभी तक दी नहीं है, आपको पहले से ही एडवांस में ही इनकम वो मिल चुकी है. तो अगेन इनकम्स आर टू बी रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सो दिस इज नॉट रिलेटेड टू द करंट ईयर, तो ये आपकी हो जाएगी माइनस. सेकेंडली एडवांस में मिली है, मे बी आपको रिटर्न करनी पड़े, सो दिस इज द पार्ट ऑफ योर लाइबिलिटी साइड, सो इट विल बी रिकॉर्डेड सेकेंडली इन योर लाइबिलिटी. द 7th एडजस्टमेंट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अब हम यहाँ पर फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि फर्म को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल क्या होती है, एक बिजनेसमैन अपना पैसा इन्वेस्ट करता है, तो फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस बिजनेसमैन को उसकी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट पे करेगी. तो फर्म के लिए एक्सपेंस है, सो इट विल बी रिकॉर्डेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड एज एन एक्सपेंस. सेकेंडली ये कैपिटल के ऊपर चार्ज होता है, तो कैपिटल में ये आपकी लाइबिलिटी साइड में ऐड हो जाएगा, क्योंकि इससे बिजनेसमैन की कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि उसको कैपिटल के साथ साथ अब फर्म को इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा. नेक्स्ट वी हैव इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. दिस इज रिवर्स. ड्राइंग्स जो पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेसमैन ने विड्रॉ किया पैसा, अब बिजनेसमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे करेगा. सो इट विल बी रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बिकॉज इट इज़ द पार्ट ऑफ इनकम फॉर अ फर्म. एंड सेकेंडली ड्राइंग्स आपकी जैसे कैपिटल में से लेस होती हैं, सेम उसी तरह इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी आपका कैपिटल में से लेस होगा. द नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज अबाउट इंटरेस्ट ऑन लोन. लोन के ऊपर इंटरेस्ट देना हमारे लिए क्या होता है, एक्सपेंस. सो P&L अकाउंट की डेबिट साइड में जाएगा. सेकेंडली लोन इज द पार्ट ऑफ योर लाइबिलिटी, सो लाइबिलिटीज में आपका ऐड हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन loan. So these are total 9 adjustment. So it is your responsibility to firstly read out or learn the adjustment, क्योंकि जब तक आप learn नहीं करेंगे आपको posting करनी नहीं आएगी. So let's start with illustration number 2. As I can say, I am going to start firstly the adjustment. The first adjustment is stock at the end. So this is closing stock, 2 sides posting. In the credit side of trading account as 60,000. Secondly in your assets as ₹60,000. The second adjustment is depreciation on fixed assets. The depreciation on fixed asset, the fixed assets are of ₹3 lakh. So fixed assets are to be recorded in the asset side as 3 lakh. तो 3 lakh के ऊपर अगर हम चार्ज करेंगे 10% से depreciation, it is
30,000. The rest is 2,70,000. The second posting of this depreciation is in the debit side of profit and loss account. Depreciation on fixed assets as rupee 30,000. The next adjustment is commission earned but not received. Commission हमने earn कर लिया है. It is an income but not received. Earned है but not received है. Means this is accrued commission. अब देखिए कमीशन आपको दिया है क्रेडिट साइड में ₹1,000. सो इट मीन्स दिस इज कमीशन रिसीव्ड. सो राइट हेयर कमीशन 1,000. एक्यूर्ड कमीशन मिलना है, अभी तक मिला नहीं है. सो इट इज़ इनकम एक्यूर्ड 400 एड 1,400 टोटल इन कमीशन. नाउ इट इज़ टू बी रिसीव्ड. सो एक्यूर्ड कमीशन इज़ माई इनकम. इट विल बी रिकॉर्डेड इन द एसेट एस. ये मुझे अभी रिसीव करना है. नेक्स्ट है रेंट रिसीव्ड इन एडवांस. अब ये नेक्स्ट ईयर का है, मुझे एडवांस में मिल चुका है ₹1,000. सो फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ रेंट एज ₹13,000 इन द क्रेडिट साइड. सो रेंट रिसीव्ड इज 13,000. एडवांस में है, सो दिस इज अनअर्न्ड रेंट ऑफ ₹1,000 माइनस 12,000. सो इफ इट इज अनअर्न्ड, सो दिस इज द पार्ट ऑफ माई लायबिलिटी एज ₹1,000. द लास्ट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है आपको 8% से. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको दिया हुआ है उसने ₹900. सो मैं पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कर देती हूँ बिकॉज द अमाउंट इज क्लियरली मैंशन. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज एन इनकम फॉर अ फर्म. सो इट विल बी रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज इनकम रिसीव्ड. सेकेंडली फ्रॉम द कैपिटल, जैसे आप कैपिटल्स में से ड्राइंग्स माइनस करते हैं, वैसे ही आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कैपिटल के अमाउंट में से माइनस करेंगे. सेकेंड डे सेट की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें 8% से चार्ज करना है. तो 8% ऑब्वियसली आप कैपिटल के ऊपर चार्ज करोगे. द कैपिटल इज ₹2,50,000. सो 2,50,000 के ऊपर 8% से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करेंगे. तो फर्म के लिए होगा ये एक्सपेंस इन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. 2,50,000 के ऊपर 8% इट इज़ 20,000. और ये आपका कैपिटल में हो जाएगा एड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. IOC से डिनोट करते हैं हम इसको 20,000. सो ऑल द एडजस्टमेंट्स आर ओवर हेयर. रेस्ट पोस्ट द थिंग्स. परचेजेस इन द ट्रेडिंग अकाउंट एज 275. सेल्स क्रेडिट साइड एज 520. रिटर्न इनवर्ड डेबिट साइड 15,000. रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट साइड एज ₹9,000. देन वी हैव कैरेज. मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. यूजुअली आपको बाकी सिर्फ पोस्टिंग करनी है. कैरेज इन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. नेक्स्ट वी हैव वेजेस एंड सैलरी ट्रेडिंग अकाउंट. ट्रेड एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. रेंट हम कर चुके हैं. इंश्योरेंस इन द डेबिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. ऑडिट फीस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में. डेटर्स एंड क्रेडिटर. डेटर्स आर इन द एसेट्स एंड क्रेडिटर्स आर इन द लायबिलिटी साइड. Same as it is BR and BP. BP is my liability, BR is my asset. Printing and advertisement, profit and loss, commission हम कर चुके हैं. Opening stock trading account, cash and bank in the assets. Bank loan credit में mention है, so it is my liability, so it will be recorded in the liability. Interest on loan expense of profit and loss. Capitals हम लिख चुके हैं. Drawings less from the capital and fixed assets we already recorded. So that's all about these two illustrations today. I think these are enough. So you have to learn up to 9 adjustment today and try to sort out first 2 illustrations or as well as the exercise question. The next adjustment I'll do in my next video. Thank you so much.